We are at Islamabad's tallest building, the Centaurus. Hello, Assalamualaikum. मैं हूं बख्तावर महमूद and I welcome you to Pro Talks, a very special series by Pro Pakistani, whereby we are going to have a conversation with the pro professionals who have done exceptionally well in their relevant fields. And आज जिस शख्सियत से हम बातचीत करने वाले हैं, he is an amazing personality in himself. He has done some wonderful job. He has been one of the youngest president of Islamabad Chamber of Commerce, and of course, he is the owner and the CEO of one of the tallest building of Pakistan and the tallest building in the Twin Cities, जिसको हम आते जाते अक्सर देख रहे होते हैं, Centaurus. We have with us Mr. Sardar Yasir Ilyas. So, Yasir, कैसे हैं आप? Thank you so much for spending time for Pro Pakistani. It's a pleasure being here. Thank you for having me. Okay, so moving on to my very first question, I really want to ask. There is a family name associated, Sardar Group. So, कितना pressure होता है? You have been born with I would want to say it is a silver spoon or a golden spoon probably. लेकिन अपनी identity create करना and working in a direction that suits you. How has been the journey so far for you? It's an interesting journey, and I think I have a lot of big shoes to fill. I think my role model in my life has been my father, Sardar Mohammad Ilyas Khan Saab, who has been a source of livelihood for many people. उन्होंने कई हजार लोगों को रोजगार दिया, nearly 8,000 Pakistanis की बात कर रहे हैं. Okay. And for that, he was actually acknowledged by the government of Pakistan. He was given Star-e-Pakistan about 2 years ago. So he's the face and the pride of our family. So living up to his expectations, trying to be half the man that he is a big task. It's a big ask. So I've tried my best. I think with his wishes, I've tried to accomplish everything he's wanted of me. I think with regards to starting with education, getting married within the family, obviously within our own culture, understanding our values, upholding those values, and obviously leaving a legacy behind or carrying a legacy which he's left for us. I think ये बहुत एक basic चीज़ है. किसी भी family जो family owned business structure को आप देखें तो यही ख्वाहिश होती है. First generation की, for the second generation to step into their shoes, carry it, and third generation to follow that through. We've set many benchmarks and we've set examples within the family and within the country itself. कि हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो हमारी values stipulate करती हैं, जो हमारा culture define करता है, जो religion हमें guide करती है, तो उसी को follow करें. And my father, mashallah, is still 5-time नमाज़ी, तो हम उनको देख के कहते हैं और उनसे ये चीज़ सीखी है कि आप जब भी किसी भी ओहदे पे, किसी कुर्सी पे बैठते हैं तो बावजूद के बैठे, उसके साथ इंसाफ करें. तो हम भी अपनी कुर्सी के साथ इंसाफ करते हैं. हम कहीं भी गए, last year when I was at the chamber, I did the same, and in my own office, I do the same. So principles and values and ethics are first and foremost. So you always wanted to become a businessman, या बचपन में सोचते थे एक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना, because I'm sure कोई ऐसे आपके passions होंगे. I was very much passionate about flying. Okay. I wanted to join the Air Force, लेकिन क्योंकि मेरी सारी grooming Middle East में थी, I never had a chance to study Urdu properly. अच्छा. तो उर्दू मैंने काफ़ी late stage में जाके सीखी और मुझे हमेशा एक fear था कि अगर मैं Air Force में apply करूँगा, because I'm a Capricorn, I'm a perfectionist, I cannot accept failure. मैंने कहा मैं अप्लाई करूँगा what if I fail, तो फिर वो मैंने अप्लाई किया नहीं. लेकिन along the way जब मैं अपनी teenage years में आया तो मैं अपने father से बहुत inspired था. He was a businessman. तो मैंने from the very young age of I think 17-18 अपनी जो business है उसको enter किया. When I was in the Middle East, I was earning my major in marketing and management at the American Institute of Dubai, और वहाँ पे at the same time मैं business भी manage कर रहा था. Dubai में I started doing refurbishments projects, and वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा. So I started very early. Multitasking मैंने सीख ली वहाँ से. फिर I went to London, did my masters in business administration, specializing in strategic management. I was an honor student. मैंने हर चीज़ में participate किया हमेशा. With extracurriculars, Model United Nations, Habitat for Humanity. So I was an all-rounder. Yeah. Orientation leader, and everything I could. So that all encapsulated it complemented what I was yeah. trying to achieve in life. So there's two things to understand. Your passion and profession can be independent. तो मैंने at the same time when I was UK में था तो मैंने देखा कि वहाँ पे flying clubs बहुत ज़्यादा हैं. So when I used to go for vacations,
But interestingly, coincidentally, my mother had to get a surgery for her knees, तो मैं UK में था, तो spare time था मेरे पास, so I enrolled into a flying club which was next to our residence. So alhamdulillah, within 2 years मैंने अपना pilot license भी ले लिया. So now passion is covered and now you're heading to some new direction. Business. तो शौक फिर भी मैंने अपने पूरा किया, and I am a certified pilot, a very proud pilot, a European approved pilot, so I can fly still, and I do fly. मैं जब भी मौका मिलता है, it's a different feeling. मैं कहता हूँ, if you want to get perspective, go into the clouds and you get good perspective. So I'm extremely pleased. And बाकी भी मेरे शौक हैं, in terms of biking and parasailing. I've heard about the cars actually. Everything. I enjoy life, और मैं लोगों को कहता हूँ कि live as if there's no tomorrow, in the right way, in a positive way. So you've actually covered all the different aspects of the life which anyone wants. So what has been the mantra for Yasir Ilyas? क्या किस तरह से जिंदगी जीना चाहते हैं? It's very simple. I think leave a positive legacy behind. कोशिश करें. देखिए अपने लिए तो है कोई जी लेता है. कोशिश करें कि दूसरों के लिए भी जी सकें. कुछ ऐसे काम कर जाएं ताकि कल जब आपको जनाजा होगा तो जनाजे पे जो लोग आएंगे आपको पता भी हो कि जनाजा है किसी का. It's very simple and that's what I do. That's how I live my life. मैं जब कहता हूँ live as if there is no tomorrow, आप सारे काम कोशिश करें आज ख़त्म करें. जो कर रहे हैं अच्छाई के साथ करें, नेक नीयती के साथ करें, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखें, क्योंकि आजकल मैं समझता हूँ जो बुनियादी चीज़ मिसिंग है वो इखलाक है. बिल्कुल. और इखलाकियात बुनियाद है for a successful nation and successful individuals, चाहे वो business की बात करें या families की बात करें. So my bottom line is to leave a positive legacy. Positive legacy में हम देखेंगे CSR में बहुत काम करते हैं. We want to contribute, want to give back. That is the reason why we're in Pakistan. यहाँ आने का मकसद ये था. मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी क्योंकि आपकी स्कूलिंग जो है वो बाहर हुई है, तो you decided to come back to Pakistan. तो family pressure था या आप चाहते थे by choice you wanted to come back to Pakistan? Yeah, we have no choice. हम being Pakistanis, हमने वापस पाकिस्तान ही आना था. जितने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी पाकिस्तान वापस आते हैं. आपकी खुशी गमी यहीं पे है, आपकी शादियां भी यहीं पे होती हैं. अगर शादियां आनी होंगी ओवरसीज पाकिस्तानी से होंगी वो भी वापस यहीं पे आएंगे. आपका तल्लक यहाँ पे है, दोस्त यार यहाँ पे हैं, आपकी जो पहचान है वो पाकिस्तान से. मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि आप जब एक ओवरसीज पाकिस्तानी पासपोर्ट ले लेते हैं, अमेरिकन ब्रिटिश कोई भी ले लें, तो आप वहाँ जब इमिग्रेशन पे जाएंगे, इमिग्रेशन वाले अक्सर पूछते हैं कि अच्छा वेयर आर यू रियली फ्रॉम. आप जो बताएंगे I'm really from Pakistan. असल आइडेंटिटी पाकिस्तान. चेहरा तो आप बदल नहीं सकते ना. तो नेशनलिटी इज आई थिंक मोर ऑफ अ नीड, क्योंकि ईज ऑफ ट्रैवल है, लोगों के लिए आसानी होती है, शायद कुछ बाहर बेनिफिट्स लोगों को नजर आते हैं, लेकिन आपकी एक्चुअल पहचान खुशी गमी आपके मुल्क में है. तो पाकिस्तान आने का मकसद ये था क्योंकि ऐड वैल्यू. मुझसे बल्कि यूएस एम्बेसी में ने सवाल पूछा था कि आप पाकिस्तान वापस क्यों आए, आपका सारा बैकग्राउंड बाहर का है. मैंने कहा यार मुझ जैसे लोग बाहर बहुत हैं, मुझ जैसे कॉम्पिटेंट लोग बाहर बहुत हैं, जो एजुकेटेड भी, एक्सपोजर भी उनका, लेकिन मुझ जैसे लोग शायद पाकिस्तान में कम हो. लिहाजा वो एक्सपोजर, वो एजुकेशन, वो वैल्यू एडिशन मैं अपने मुल्क में लाना चाहता हूँ. मेरे पास अभी भी ऑप्शन था, हमेशा ऑप्शन था कि आई कुड हैव डन बिजनेस एल्सवेयर, लेकिन जब मेरे फादर की ख्वाहिश थी, मेरे भाई की ख्वाहिश थी कि हमें पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, पाकिस्तान में लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट करना है, हमने यहाँ पे ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम एवोल्यूशन लेके आ रहे हैं यहाँ पे. वी वर द पायनियर्स. मतलब आप देखेंगे जो दिस प्रोजेक्ट इटसेल्फ वाज अ मिक्स यूज प्रोजेक्ट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टिल डेट. इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं बन सके यहाँ पे. तो वही मकसद है कि हम वो करें जो बाकी नहीं किया, और रोज़गार के अलावा वैल्यू एडिशन लाएं और पाकिस्तान का ट्राई टू बिकम द फेस ऑफ पाकिस्तान, try to represent Pakistan कि this is the positive side. And I think you have done that very successfully, क्योंकि पाकिस्तान की बात आती है तो सेंटोरस बिल्डिंग का जो एक आइकन है वो हर जगह रिप्रेजेंट हो रहा था, showing we have exceeded somewhere. So Yasir, I hope you don't mind me calling you a billionaire. So बहुत सारे लोग आजकल जो हैं वो फेमस होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं. सक्सेसफुल तो आई एम श्योर यू आर, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेस के लिए और फेम के लिए कभी टर्किश एक्टर्स को पाकिस्तान लेके आ रहे हैं, कभी क्या करें. Did you ever thought of like becoming really famous, or you have a lot to say actually? Actually none of this matters. ये सारी materialistic, superficial चीज़ें हैं. जो एक्चुअल पहचान है आपकी और जो एक्चुअल आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए लोगों के दिल में होनी चाहिए. एंड जब आपकी कब्र में आप जाएंगे तो कब्र में कोई ये नहीं कहेगा कि इसने फलाने को बुलाया था, ये फलाने को जानता है, मिलियन फॉलोअर्स थे या इसके पास इतने पैसे थे. वो सिर्फ यही याद करेंगे और इस पे आपका जिक्र किया जाएगा कि वो अच्छा इंसान था या बुरा इंसान था. तो हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे. इन लाइफ आपको फोकस करना चाहिए कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की जगह हम लोगों को दे देंगे. इस्लाम भी ये कहता है कि आपका पूरा हक है आप अपने ऊपर खर्च करें, लेकिन जायज़ नाजायज़ ज़ाया ना करें. कल इसका हिसाब होगा. अगर किसी के पास कम है उसकी भी पूछोगे, किसी के पास ज़्यादा है तो उसका भी हिसाब होगा कि आपने उसके साथ क्या किया था. सो जैसे कहते हैं इंग्लिश में कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. You have to be a responsible citizen and you have to give back. तो CSR पे हमारा बहुत फोकस है. अभी हम इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, which is a charitable hospital, which is a 100-bed hospital, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा उन लोगों के लिए जो कि ज़रूरतमंद हैं, जो साहिबी हैसियत हैं वो वैसे अफोर्ड कर सकते हैं. उसमें हमारा प्लान ये था कि वी ट्राई टू गेट दी फिनिशिंग डन दिस ईयर, लेकिन अगेन ऑब्जेक्टिव ये था टू गिव बैक टू द कम्युनिटी. वैसे हम यहाँ पे भी काफ़ी CSR में काम कर रहे हैं. वी ऑलवेज डोनेटिंग एंड
गिविंग बैक टू लोकल कम्युनिटी, जो हमारे यहाँ पे NGOs हैं या जो यहाँ पे ऑर्फन के यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स जैसे SOS विलेज वगैरह हो गया, वी हैव डोनेशन बॉक्सेस में हम यहाँ कलेक्शंस करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल एंड गिव इट बैक. शौकत खानम हो गया, मल्टीपल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे जिनका एक राइट है. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज वो एक कॉज है, वो एक चीज़ है जिसमें हम कल आई कैन नॉट टेल यू, अगर कोई ऐसा आप काम करें रात को वो काम करके सो के देखें, जो सुकून की आपको नींद आएगी, जो इन कामों से आपको मिलती है किसी और काम से नहीं मिल सकती. सो दैट शुड बी योर फोकस, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, गिविंग बैक टू योर कंट्री, national interest above all. So Yasser, if given an opportunity that if anyone Googles Sardar Yasser Ilyas on Google, तो पहला आर्टिकल या पहला कंटेंट क्या होना चाहिए? What do you want your identity to be on these digital platforms? It should definitely be made in Pakistan, promote Pakistan first. क्योंकि डेली हम यही काम कर रहे होते हैं. I mean every day जब हम मिलते हैं embassies से या मिलते हैं foreign missions से, delegates से हमें मिलते हैं, we're preaching to them every single day कि look at Pakistan, we're not what you've seen on TV, ये पाकिस्तान कुछ और है, Pakistan has a lot more to offer, this is just the tip of the iceberg. So जब आप Google करते हैं, I hope you see one of my articles, I hope you see things कि हम किस तरह से made in Pakistan को promote कर रहे हैं, पाकिस्तान का culture, पाकिस्तान की exports को promote कर रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि जो local industrial setup हम इसको global scale पे लेके जाएं. पाकिस्तान के जो ब्रांड्स हैं उनको प्रमोट करें. वी हैव एक्सीलेंट ब्रांड्स इन पाकिस्तान जो एट पार हैं विद वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड्स. सो वी आर हु वी आर. और जिस तरह से आपने मुझे बताया भी, इतनी सारी कंस्ट्रक्शन, इतनी लाइक वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप क्लास बिल्डिंग हैज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट इज मेड इन पाकिस्तान, और हम उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं. जो आप देख रहे हैं ब्लैक एंड गोल्ड, ब्लैक एंड ब्राउन मार्बल, दिस इज मेड इन पाकिस्तान. तो हमें तो फख्र है, हम पूरे दिन लोगों को ये बताते हैं कि जो क्वालिटी पाकिस्तान में आपको मिल सकती है, जो आप चेयर्स वाइट वाली देख रहे थे, ये भी मेड इन पाकिस्तान है. पाकिस्तान का लेदर है, द क्विल्टिंग, द टफ्टिंग, जो पूरा स्किल यहाँ मौजूद है और इनएक्सपेंसिव ह्यूमन रिसोर्स है, अंडर यूटिलाइज है. उनको एक्सपोजर आप दें, उनको विजन है, उनको गाइडलाइंस दें. जो दुनिया में आप जहाँ भी चीज़ देखेंगे, चाहे वो US में है, UK में है, इटली में है, वो चीज़ पाकिस्तान में भी आप रियलाइज़ कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं. इट शुड बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड. अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, नीयत है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान में. Yasser, what are your top 5 qualities जो आपको डिफाइन करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को बताते हैं? I think it's similar to my star sign. I think I would consider myself to be a loyal person. मेरी सबसे बड़ी important चीज़ है being loyal. Capricorn. Oh, Capricorn. So you have to be loyal, you have to be honest, be persistent, committed, dedicated, give back, be giving, be forgiving also, because I think Islam भी कहता है कि माफ़ करना, जो माफ़ करने वाला होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है. और especially इस पोजीशन पे आके तो बहुत मुख्तलिफ एक चीज़ हो जाती है. So be true to yourself. देखें जो मेरा अपना thesis था in my MBA was the strategic importance of emotional intelligence. उसकी key traits यही है, to be able to be self-aware, have self-governance, motivate others, social skills, be empathetic. ये core values हैं जो जिनके बारे में theories में पढ़ते हैं about business intelligence, तो वो चीज़ें आप अपनी personality का हिस्सा बना दें. So I think they should be part of your characteristic. Also to be a good leader, these things are essential. कि आप में चीज़ें build हो, आप fair हो, आप bias ना हो. Be truthful to yourself and to others. जैसे आप बाहर से वैसे आप अंदर से होंगे. That's how it should be. So Yasser, what if someone really wants to know what is the net worth of this whole building or yours? तो आप क्या कहते हैं उनको? Well, Centaurus की अगर हम बात करें तो till date we've invested close to $450 to $500 million as far as Centaurus is concerned. And alhamdulillah, every penny that went to Centaurus was through the State Bank of Pakistan. And everything has been reinvested in Pakistan. अब Centaurus के फ़ौरन बाद हमने एक नया urban plan housing project शुरू किया था by the name of Taj Residencia to add value. So we've kept giving back, kept reinvesting, जो कि आगे में हमारा ये plan है. As far as personal growth is concerned, personal net worth, it is completely irrelevant. मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप ये देखें कि अगर आप एक Alto चला रहे हैं, आप कल कहेंगे Corolla हो, Corolla के बाद आप कहेंगे Honda Civic हो, फिर आप कहेंगे Land Cruiser हो, फिर आप कहेंगे Rolls Royce, फिर आप कहेंगे हवाई जहाज़ ले लें. So it doesn't end. वो आपकी wants हैं, आपको focus करना चाहिए needs के ऊपर. And a businessman should see this way कि क्या मुझे वही comfort एक Corolla में मिल रही है, अगर मिल रही है तो remaining fund आप invest कर लेंगे कहीं पे, long term में वो आपको pay back करेगा. It's not important to look rich. It's important to be rich. So for that you need to allocate your assets, you need to allocate your funds, disperse them, look at the opportunity cost of things. That is the way a businessman should think. So Yasser, let's talk about this majestic skyscraper Centaurus, जिसको हम आते जाते देख रहे होते हैं roads पे. तो हम assume कर रहे होते हैं कि what was the idea behind creating such an amazing, interesting building? और यहाँ पे हम observe कर रहे हैं कि बहुत सारी automation और technology को भी आपने involve किया हुआ है. What was the thought behind it? Basically 2005-06 में ये ज़मीन auction की गई थी CDA से, जिसकी जो classification थी was mixed use. So my brother and my father both were very keen कि कुछ unique project किया जाए पाकिस्तान में, which is one of a kind. तो project की classification जो उसका breakdown था segments का वो यही था कि it should have a mall, it should have a hotel, it should have offices, it should have residential complex. तो हमने कहा कि पाकिस्तान में at that time ऐसी चीज़ कभी भी नहीं हुई. तो we knew the expertise was not there. So हमने जो best firm थी at the time जिसने Burj Al Arab बनाया था उनको engage किया, which was Atkins. And Atkins को हमने कहा कि आप concept propose करें. So they gave us a couple of ideas.
and that's where we came up with the name. So when they said कि इसमें ये सारे components centrally integrate हो सकते हैं, तो the design was in line with the waves. So आपको मॉल की जो wave नज़र आती है, this is in line with the mountains of Islamabad. And it cost us more to build, लेकिन वो design की aesthetics वो इतनी खूबसूरती थी उसमें कि this is a lifelong, आप समझे कि एक आपका एक milestone project था जिसकी एक iconic signature होगा. So then you see this wave and you see the hotel tower coming up. Yeah. And that was the design. And then we had to come up with a name. जो नाम भी उस project को complement करे. So Centaurus. Now Centaurus means the brightest constellation of the stars in the sky. Okay. तो उसकी reflection दुनिया में आपने create कर दी. इसमें आपने सारे components, the brightest stars, meaning hotel, apartments, offices, and the shopping mall, all integrated into one complex in one location. So that is the beauty of this project. साथ साथ जो रोजगार यहाँ पे लोगों को create हुआ, आप देखेंगे जो यहाँ पे आपके पास 3 से 4 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. यू हैव द टेनेंट्स दैट आर हियर, जो मॉल में आपने टीम्स क्रिएट की हैं, ऑपरेशंस की, हाउसकीपिंग की, मेंटेनेंस की, सिक्योरिटी की जो टीम्स क्रिएट हुई हैं. सो आई थिंक दिस इज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन. सो कलेक्टिवली मिलके जो इसकी यूनिकनेस है वो यही है कि इट्स सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन वन प्लेस, अंडर वन रूफ आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं. जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे उनको यहीं पे नीचे उनको मॉल मिल जाता है, फूड कोर्ट भी है, सिनेमाज भी हैं, फन सिटी भी है यहाँ पे. इस्लामाबाद को हमने एक डेस्टिनेशन ली यहाँ पे पहले 8 बजे लोग सो जाते थे, अब 12-1 बजे तक आप रात को जाग जाते हैं. They have a place to visit. Yes, and brands, you know, इस रीजन में जो ब्रांड्स हम लेके आए हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे आए हैं, डोमेस्टिक ब्रांड्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं, ग्रो किया उन्होंने. जो 200 स्क्वायर फुट के साइजेस थे अब 2000 से 5000 से 10,000 स्क्वायर फुट पे ऑपरेट कर रहे हैं. सो ग्रोथ मिली है यहाँ पे. एंड विद रिगार्ड्स टू ब्रांड्स, अब देखें यहाँ पे मैंगो यहाँ पे है, ह्यूगो बॉस यहाँ पे हम लेके आए हैं, यू नो, आर्मानी, रैल्फ लॉरेन, बॉडी शॉप, एंड ऑब्वियसली ऑल द फूड चेन्स. सो देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन इस्लामाबाद थ्रू दिस प्रोजेक्ट. Okay, so आपने जो specifically अपने पेंट हाउस का हमें एक टूर करवाया, it's I would say it's lavish but it's very technologically advanced. So are you like a techy person yourself? आपके माइंड में था कि मैंने जो भी अपना पेंट हाउस और अपना एक ऑफिस स्ट्रक्चर क्रिएट करना, वहाँ पे टेक्नोलॉजी शुड मेक दिस इनोवेशन. देखिए आज के ज़माने की हम बात करें तो हम दुनिया में ये चीज़ें देखते हैं, होटल्स में, प्रॉपर्टीज़ में एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. तो मैं ये दिखाना चाह रहा था सबको कि ये चीज़ें पाकिस्तान में भी की जा सकती हैं. There is nothing difficult. ये कंपनीज अब यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है. इट मेक्स लाइफ ईजी. अगर आप नॉट जस्ट ईजी, ऑल्सो दिस इज लॉट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आप देखेंगे आपकी वेस्टेज नहीं है, आप जब ऑफिस से निकलेंगे लाइट्स उसी वक्त ऑन हो जाएंगी, आएंगे उस वक्त ऑन होगी. आपकी जो टेम्परेचर कंट्रोल्स हैं वो आपके हाथ में. आप जब आएंगे तो AC ऑन होगा वरना ऑफ कर लें. सो आई थिंक इट मेक्स लाइफ बेटर. इट सेव्स टाइम एज वेल. इट मेक्स यू मोर एफिशिएंट. So I think technology is a part of daily life. और मैं समझता हूँ कि we have to evolve with technology. हम कहते हैं change, managing change. This is a core part. आपके देखें devices कितनी evolve हो गई हैं. So it makes life better, operationally, functionally, in every aspect. So Yasser, what is your wider vision for the infrastructure development in Pakistan? I think there's a long-term plan here with regards to the infrastructure development. आप देखें कि जो आपकी need है आज वो क्या है. 227 million की हम बात करें जो आपकी आबादी है, exponential growth है. प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो विजन है 50 लाख घरों का, आज जो डिमांड है वो 12 मिलियन हाउसेस की है. अगर हम साल में 10 लाख घर भी बनाते हैं, इसका मतलब है आप 2800 घर पर डे बनाएंगे. क्या इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पे अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज? नो, ऑफ कोर्स नॉट. सो आई थिंक वी हैव टू मूव फास्ट, मूव नाउ. Demand is there, but the thing is we don't have the the human resource available, we don't have the materials available. जो आपकी huge demand है उसको अगर आपने meet करना है तो आपके पास जो major companies हैं यहाँ पे for example tiles की हैं, तो उनके पास इतनी डिमांड है कि वो एक्सपोर्ट तक नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सारी सेल्स यहीं लोकली हो जाती हैं. सो वी नीड मोर कंपनीज इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. आप देखेंगे उसमें आपके पास पाइप्स आते हैं, उसके पास एलाइड सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन के साथ अगर आप देखें तो 50-60 आपकी इंडस्ट्री चल रही हैं. तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट सेक्टर टू बी इन, और सेक्टर जिसमें अगले 20 साल तक आपकी डिमांड ही डिमांड है. वी नीड टू फोकस ऑन अ फ्यू मोर थिंग्स अलॉन्ग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. जो इस बुनियादी एक चीज़, एक बुनियादी हक है इंसान का, वो आपका हेल्थ केयर है, और सेकेंड आपकी एजुकेशन है, जो बैकबोन है इस मुल्क की. तो हम लिटरेसी रेट अगर पाकिस्तान का देख लें तो करंटली 60% के करीब होगा. AJK देख लें तो वो भी इसी रेंज में है. सो वी आर नॉट डेवलपिंग एट द पेस. और डेवलपमेंट के लिए 2 चीज़ें हैं कि आप अपनी आवाम को एम्पावर करें, उनको एजुकेशन दें, और जो उनका हक है वो है हेल्थ केयर, जिसकी वजह से आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी इस पर फोकस कर रहे हैं. जो आपका सहूलत हेल्थ का कार्ड है इसलिए दे रहे हैं कि ये बेसिक नेसेसिटी है लोगों के लिए. Those are the things we need to focus on as we move towards urbanization. The basics need to be there. जो हर इंसान की ज़रूरत है. So Yasser, thank you so much. I had a lovely time interacting with you, seeing this mesmerizing place, interacting with your team. बहुत मज़ा आया. Thank you so much for this. I just want कि आप हमारे pro Pakistanis के लिए एक message दें, especially the youth who is watching you right now by looking into the camera. Certainly. Firstly, thank you for coming. It was an absolute pleasure having you. Assalamu alaikum, pro Pakistanis. एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये मुल्क है तो हम हैं. हमारी पहचान इस मुल्क के साथ है. There should be one thing, national interest above all. आप सब ने मिलकर इस मुल्क को आगे लेके जाना है.
अपना जो टैलेंट है इसको सस्ते में बाहर ना बेचिएगा। एक चीज़ याद रखें हमेशा कि ये पूछते हैं सब लोग कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया, लेकिन आपको ये पूछना चाहिए कि हमने इस मुल्क को क्या दिया है। Add value, be here, make Pakistan strong and great again, because together we can and together we will make Pakistan great. एक चीज़ और याद रखिएगा कि हम सब ने मिलके इस बेहतरीन मुल्क को और भी बेहतर बनाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। If you would have come this far, I'm sure you would have loved this content. To watch more exciting content like this, please follow and subscribe Pro Pakistani. Take care and Allah Hafiz.